Hello everyone, welcome to the Shrine of English. So guys, you already know about this book, The Unfolding of Language. This book almost was written around 2 to 3 years back, and since then this book has been selling like a hot cake. And you must be aware that we have sold this book more than some 2000 copies. So the Shrine of English is here with another book, and it's a good news, happy news. For the lovers of English language, we are coming up with another book, and the book is of verbs. What is verb? We'll discuss very soon. Right now, the person who has compiled all these verbs and put his heart and soul to write the sentences, to make it easy, to make it useful for every English learner. Person is sitting with me. We'll also talk what are the benefits you are going to get through this book, and what are the strategies you need to apply if you buy this book to improve your English. We will be using bilingual language, Hindi and English both, so you can understand what exactly we wish to convey. If you have any queries related to the things, either with the last book you want to ask something, or related to this book you have any queries, please write in comment section. We love to resolve your problems, or if you have any doubts related to this, we'll help you. You can buy this book because now it's available, and very soon this book will be available on other platforms also, like Amazon and other platforms. It will be available, so you can buy from there, or you can directly call us as you buy this book directly from us. So you can buy this book also, and we'll send you price and all these things we'll discuss later. So for this, keep watching this video. So इस बुक का नाम देखिए, ये है 1000 Important Verbs for Lovers of English Language. जो इंग्लिश लैंग्वेज के शौकीन हैं, जो सीखना चाहते हैं, for them it is a wonderful book. Let me little bit tell you what is the importance of verbs. अगर आप बेसिक लर्नर हैं, या आप शुरू से अगर इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहली जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो है वर्ब्स. वर्ब्स क्या है? जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. अगर आपको ये वर्ब्स नहीं आती तो आपसे सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी. तो सबसे पहली शुरुआत ही होती है सेंटेंस बनाने से. जैसे अगर आप ये कहें कि मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, तो बोलने की इंग्लिश आपको आनी चाहिए. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो चाहना और सुनाना, इनकी वर्ब्स आपको आनी चाहिए. तो इस वर्ब का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है. हम इसके बारे में बात करेंगे. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. So Gagan, small introduction of yourself and then we'll start with this. So hello, my name is Gagan, and जैसा कि सर ने बताया कि we will keep this video in bilingual language, and मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ इस बुक की और ये लिखी क्यों गई है. हम काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, तो एक चीज़ ये देखी कि स्टूडेंट्स को वर्ब्स जानना और यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है. जानना एक चीज़ होती है, दूसरा उसका यूज़ करना बड़ा अलग चीज़ होती है. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, कल शाम को क्या हुआ था, एक स्टूडेंट बोल रहा था द डॉक्टर वॉज करेक्टिंग माई ब्रदर्स हैंड. तो ये सेंटेंस गलत था, क्योंकि उसने देखा गूगल पे करेक्ट मतलब होता है ठीक करना. तो वो स्टूडेंट ये कहना चाह रहा था कि जो डॉक्टर है मेरे भाई का हाथ ठीक कर रहा था, तो वहाँ पर करेक्ट की जगह जो राइट यूज़ था वो यूज़ करना चाहिए था ट्रीट. तो वर्ब्स का एक जानना अलग चीज़ होती है और उसको यूज़ करना एक अलग चीज़ होती है. इस बुक का पर्पस ये है कि आपको हर एक तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर वर्ब लिखी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसकी प्लस हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है, सेकंड उसकी इंग्लिश मीनिंग भी लिखी है, एंड थर्ड उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. एग्जाम्पल लिखने का पर्पस ये है कि आप उसको यूज़ कर पाएँ कि कैसे एक वर्ब कैसे इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि कुछ वर्ड नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, प्लस एडवर्ब भी होते हैं. तो कौन सा वर्ब कौन सा वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये बहुत मैटर करता है. और वर्ड्स को जानना, वर्ब्स को जानना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है. सपोज दैट हमने एक स्टूडेंट को सिखा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये होता है कि जिसके पीछे ता है, ती है, ते होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और जो रिपीटेड एक्शन होता है. अब मैंने उससे बोला कि आपके पापा आपको डांटते हैं, उसको रूल नहीं आता बट उसको डांटने की वर्ब आती है स्कोल्ड. तो समहाउ ही विल कन्वे हिज आइडिया. वो आइडिया कैसे भी कन्वे कर दे, चाहे आई के साथ इज लगा दे, आई माई फादर वर स्कोल्डिंग मी और आर स्कोल्डिंग मी, बट हम समझ जाएंगे. बट सपोज दैट उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को करेक्ट की स्पेलिंग, स्कोल्ड की स्पेलिंग ही नहीं आती और स्कोल्ड का मतलब ही नहीं पता, तो ना चाहकर भी वो उस आइडिया को कन्वे नहीं कर सकता. तो पर्पस इस बुक का ये है कि आपको बेसिक फाउंडेशन आ जाए,
वर्ब्स की और बेसिक वर्ब्स पता चल जाएं कि जिससे जो बाद के डिफिकल्ट वर्ड हैं वो आपको समझ में आ जाए। जैसे एक वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी के निवेदन करना या विनती करना। अब मैं स्टूडेंट से बोलूँगा रिक्वेस्ट ना याद करके अर्ज करो, बिसीच करो, ये सारे वर्ड्स करो। तो रादर देन गोइंग विद द हायर वर्ड वी शुड लर्न फर्स्ट बेसिक वर्ड्स, जिससे हमारी फाउंडेशन बन जाए, जिससे हम अपनी सिंपल डे टू डे लाइफ में अपनी बातें कन्वे कर पाए। इस बुक का ये पर्पस है। तो इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें बस मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा, कितनी वर्ब्स हैं इस बुक में अप्रॉक्सीमेट? ये 1000 वर्ब्स हैं टोटल, पर इसका ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट सून वी विल पब्लिश। So guys, in first part you are going to get 500 verbs as sir has already explained. Let me little bit tell you. एक तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको एक साथ इसमें मिल रही हैं, उसके बाद उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हिंदी के मीनिंग के साथ इंग्लिश का भी मीनिंग है यहाँ पे। तो कई बार अगर जैसे डांस वर्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो डांस तीनों वर्ड लिखे हैं, हिंदी में लिखा है नृत्य या नाचना। फिर इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया है, जैसे टू मूव रिदमिकली टू म्यूज़िक, टू मूव एंड जंप अराउंड विद एनर्जी। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एक वर्ड को इंग्लिश में यूज़ कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इसमें हर वर्ड के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिर्फ आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं, आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा। जैसे शी स्टार्टेड डांसिंग हैविंग हर्ड हर रिजल्ट, उसने अपना रिजल्ट सुनते ही नाचना शुरू कर दिया। तो इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स तो आपके लिए कॉमन है, जैसे डांस वर्ड मैंने बोला, ये बहुत कॉमन वर्ड है। लेकिन आप इसमें एट द सेम टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड या यूँ कहें कि जो वर्ड्स आपने शायद ना सुने हो वो वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। तो इसमें हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, और इसके अलावा उसमें हर वर्ड के साथ उसका एक सेंटेंस भी बना के दिया हुआ है। तो आपको एक फ़ायदा इसमें ये है कि आप इसको कंप्लीट पैकेज की तरह समझें कि ये 500 वर्ड्स सिर्फ आपको 500 ही वर्ब्स नहीं दे रहे, इसके अलावा उसका इस्तेमाल और ऐसे करते करते वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। हम इस बुक का प्राइस क्या रख रहे हैं? 200 अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो आप ये बुक देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ख़रीदें। अगर आप हमसे डायरेक्ट भी ख़रीदते हैं, आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपको सिर्फ 200 पे करने हैं इस बुक के लिए, उसमें हम डिलीवरी चार्जेस भी आपके इंक्लूडेड हैं। जैसे इस बुक का आपको पता है कि इसका 350 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्ज हम इसका अलग से लेते हैं। लेकिन इस नई बुक के साथ हम ये कर रहे हैं कि इसमें आपका डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप ये बुक मंगवाना चाहें तो आपको सिर्फ 200 पे करना है। आप पहले नंबर पे बात करें और फिर आपके एड्रेस पे, जो आपका एड्रेस होगा उस पे ये बुक आपको भेजी जाएगी। वर्ब से रिलेटेड अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहें, इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई और चीज़ें जानना चाहें, आप अगर ये जानना चाहें कि कैसे ये हमारी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, तो उसके लिए हमारी आने वाली दूसरी वीडियोस भी देखते रहिए। उसमें हम और डिटेलिंग करेंगे कि वर्ब्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं आपको इतना बताऊँ कि अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम पहले 300 या 400 वर्ब्स याद कीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और उसके थर्ड फॉर्म। तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए यूँ समझिए 1000 वर्ब्स हो जाएंगी। जैसे ईट, एट, इटन, ये एक वर्ड है लेकिन एट द सेम टाइम ये 3 वर्ड भी हैं कि कहाँ ईट यूज़ होगा, कहाँ एट यूज़ होगा, कहाँ इटन यूज़ होगा। गो, वेंट, गॉन, ये एक ही तीनों हैं लेकिन ये तीनों के अलग अलग यूज़ भी हैं। तो ये आपको अगर 500 आप याद कर रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि ये 1500 वर्ड एक तरह से हो जाएंगे। 1500 वर्ड्स के साथ आपकी इंग्लिश में जो सुधार आएगा, अगर आपको ये वर्ड इस्तेमाल करने आ जाए तो फिर आप अपनी इंग्लिश देखिए। आप कोई क्लास भी अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी वहाँ पे पकड़ दूसरे स्टूडेंट से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ पहले समझ में आ गई कि वर्ब्स का इस्तेमाल क्या है। इससे रिलेटेड हमें कुछ और बताना है, इस वर्ब से रिलेटेड कुछ बताना चाहें? इस बुक से रिलेटेड और वैसे दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस आप जाएंगे तो आप देख सकते हो उधर इर्रेगुलर वर्ब्स की पूरी वीडियो, जिसके अंदर सर ने एक्सप्लेन कर रखा है एक एक वर्ड को। तो आप हमारे यूट्यूब कंटेंट को भी देख सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको डे टू डे लाइफ की रील्स, वर्ड्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले, और ना भी मिले तो भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम इसमें अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी इसमें फ़ायदा मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कुछ आप जिससे रिलेटेड जानना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिखिए। इनफैक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकें,
और हम ये नहीं कह रहे कि यही बुक मार्केट में सबसे अच्छी है, बुक्स कोई भी है, पढ़ना ज़रूरी है। जैसे बस ये वीडियो के एंड में मैं बताऊं कि कल एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था गोरखपुर से, और वो मुझसे कह रहे थे कि वो किसी बैंक में या पता नहीं कहीं पे मैनेजर हैं, और वो कह रहे थे कि मुझे आपकी बुक ख़रीदनी है और मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, इंग्लिश में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको ये बोला कि आपको लगता है कि एक किताब से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी? तो वो थोड़ा सा चौंक गए इस बात पे। तो वो कह रहे कि आप ही की बुक है, आप ही ने कहा है, बहुत फ़ायदा है इस बुक से। मैंने कहा देखिए, एक बुक से पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। आप बुक से बेहतर तो एक पहले टीचर खोजिए। तो मेरी उनसे लगभग 5-7 मिनट बात हुई। मैंने उनको बोला कि आप कोई एक टीचर खोजिए, उससे सीखिए, फिर मेरी बुक भी लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक बुक खरीद के ही आप इंग्लिश सीख जाएंगे, सिर्फ 300 रुपये खर्च करके आप इंग्लिश सीख जाएं, ऐसा नहीं होता। हम उस तरह की फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलते। बुक तभी आपके फ़ायदे की है अगर आप ये लेने के बाद पढ़ें। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी बुक्स जब लोग लेते हैं, लेते समय बहुत पैशन में लेते हैं, और उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद कोई नहीं पढ़ता इसको। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो फिर आपके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी प्रेशर में कहीं पे किसी टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो ये बुक फिर आपके लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि आप वहाँ रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आप इसमें से 10-10 वर्ड याद करें, और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि 10 से ज़्यादा भी आप वर्ड एक दिन में याद कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए गाइडेंस ज़रूर रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम और डिटेल में चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे बस इस बात के साथ हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको, एंड गुड लक, टेक केयर। कितनी मिनट गई है? बहुत ज़्यादा गई है। नहीं, 11 मिनट।